and these questions were very easy. Okay, I told you कि do it yourself at home. ठीक है, कोई डाउट होगा you can ask me. थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं. Okay, एक एक पार्ट सबका कर लेते हैं, then you can do at home, and after that we are going to start module 2. Okay बेटे, subjective questions of module 1. Subjective questions, केस स्टडी के बाद जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, that we are going to do subjective questions. First question में I gave you a hint that convert each of the fractions into percent. Okay, first answer किसने निकाला है? Raise your hand. Who have found first answer? Yes, fraction is given to you and आपने उसको percentage में convert करना. Very good, very good. You're all hardworking children. Yes, I know. Very good. काफी बच्चों ने कर लिया है. 7G section से second last girl. Please tell me what is the answer of this? First part. I think मैंने कल भी आपको करवाया था ये. You have to convert it into percent and please explain me how you have done. हाँ जी बेटा, put on mic please. E section बेटा डोर क्लोज करो. कैमरा के सामने आपका डोर आ रहा है. 56%. 56% कैसे निकाला बेटे आपने? What was the method? 30%. Repeat it. Ma'am, दोबारा बोलो. 100%. Yeah, 14 by 25 into 100 by 100 and then we did 14 by 25 into 100%. Yes, very good. So she found it to be 56%. Very good, बिल्कुल ठीक है answer. Very good, sit down beta. We have to do all the questions by this method. Please sit down beta. G section, sit down. वीडियो स्टिल हो गई है बेटा सी डी और जी सेक्शन की. बी ऑल्सो. वीडियो स्टिल हो गई है आपकी बेटा, थोड़ा ठीक करवाओ. यस, ओनली ई इज लेफ्ट जिसका वीडियो आ रहा है. 25 4s are 100. Okay, and then we are doing it 56%. Okay, all the parts you have to do in the same way. Okay, एक और पार्ट इसका कर रहे हैं, 7th पार्ट. सब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये जो सारे पार्ट्स आपको इसी फॉर्म में करने हैं. वन मोर वी आर गोइंग टू डू. इट इज 111 by 300 into 100 by 100. 100 by 100 we have to write ourselves. अपने आप हमें लिखना है. ठीक है, then you can cut it. Okay, and it will come out to be 111 by 3%. इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो because you have to find in percentage form. तो इसको you can leave like this by 3%. What about other children beta? Only A and E are working. I cannot see other children. हाँ, सिर्फ दो ही वर्क कर रहे हैं अभी ना. हाँ, कुछ हाँ. Let us do second question. परसेंटेज में निकाल लिया आपने. ओके, एंड ऑल द पार्ट्स यू हैव टू डू इन दिस वे. ओके, टिल द टाइम बाकी बच्चे ज्वाइन करते हैं.
Let us बाकी बच्चे जो A और A और E section who are here in front of me, please do all the parts. I will be asking you answer. Second part करो, third, fourth, fifth. Do by the same method. Very good. Find the answer. I will ask you. सेकेंड क्वेश्चन मैं बाद में स्टार्ट करवाती हूँ, बाकी को ज्वाइन करने दो. फर्स्ट क्वेश्चन के कंप्लीट करो पार्ट सारे. आई विल बी आस्किंग यू आंसर्स. You have come to know how to change a fraction into percent. ओके आपको दिख रहा है सब में कि हम नीचे वाला जो डिनोमिनेटर वाला 100 है उसको हम परसेंटेज के साइन में कन्वर्ट करते हैं. रिमेनिंग ऑल वी मल्टीप्लाई एंड डू इट इन लोएस्ट फॉर्म. ओके बेटा, प्लीज कंप्लीट इट. आई विल बी आस्किंग यू आंसर. अभी मैं नेम बुलाने वाली हूँ, सीरियसली करो. यस, बी सेक्शन अभी मैंने आगे नहीं करवाया बेटा. इसका 7th पार्ट नोट डाउन करो ऑफ द सेम मेथड एंड देन डू फर्दर. पार्ट करो इसके. स्मार्ट क्लास में है प्रॉब्लम. क्या बंद हो गया था ना. अच्छा इसको यस, बी सेक्शन बेटा कंटिन्यू करो इसको. इसका सेकंड और थर्ड पार्ट भी करो. वेरी गुड. यू हैव कम टू नो द मेथड. क्लास में यू आर गेटिंग गुड चांस टू प्रैक्टिस ताकि एग्जाम में मुश्किल ना हो आपको. ओके जगजोत come here. yes, who have found question number 2, this 4 by 7 by 20 into percent. Second part, who have done second part 7 by 20 into percent. A section, who is telling me from A section? Second part, very good. बता दो बेटा, first child. Yes, मैम 14%. 14%. You wrote like this. Okay, then you did like this. 5 to the 10. Second part you are telling me ना बेटा. First का second. Okay. 35%. Yes, 35%. Very good. और 14% किसका आंसर बता रहे हो आप मेरे को? Which part you are telling me? मैं मल्टीप्लिकेशन में गलत हो गया. Okay, okay, all right. This is 35%. Very good. Everybody has come to know the method. Okay, same questions. All the same questions are there in first question. Please try at home. Okay. Second question, write each of the following percents as fractions. Percent already आपको दिया हुआ है. A part, it is 14.5 by 8%. Percent already दिया हुआ है आपको. You have to convert it into fraction. It means we have to remove percentage sign from here. Okay, instead of percentage sign, what would you write? Into 1 by 100. बाकी काम तो हमने करना ही है, मिक्स को हमने चेंज करना है इम्प्रॉपर में, बट वी नो सबसे पहले आपने परसेंटेज के साइन को खत्म करना है. इंस्टेड ऑफ परसेंटेज साइन यू आर राइटिंग इट हियर 1 by 100. अब इसको सॉल्व करके हमारा पूरा का पूरा आंसर जो है वो फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा. प्लीज डू इट. यस, कंटिन्यू. यू नो इट. ये मिक्स फ्रैक्शन है. मिक्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं आपने ऑलरेडी 6 में भी सीखा हुआ है. Please solve it and tell me what is the fraction coming.
Very good, everybody. Husband. Yes, beta. F section, Sanya. Can you tell me what is coming? मैम एब्सेंट है। Absent. Okay. D section, Astha. Please tell me what is coming, beta. Improper को convert किया आपने, इसको mix को change किया improper में. यस। Okay, tell me then. 117/8। 117/8. Very good. Fraction क्या आ रहा है? आंसर क्या आएगा आपका? हमने आंसर फ्रैक्शन में निकालना है, ठीक है बेटा? तो आपको मल्टीप्लाई करना है 117/800. दिस इज द आंसर. इज इट ऑल राइट? किस किसने निकाली है? प्लीज रेज योर हैंड. किस किसने यहां तक किया है? वेरी गुड, वेरी गुड. दिस इज द राइट आंसर. यू नो बेटा, यहाँ पे आप इसको इम्प्रॉपर में नहीं कट कर पाओगे. ऊपर 117 है एंड नीचे 800 है ना? वो दोनों एक दूसरे किसी भी टेबल में नहीं जा रहे हैं. यू हैव चेक्ड इट. So this is the only answer. You can leave it as it is. Okay? उन्होंने पूछा था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करो, तो you have done it. You can leave it here. ठीक है? इसके बाकी सारे क्वेश्चन आपने सेम वे से करने हैं. Okay? And practice at home B, C and D part. Okay? Third question. Write each of the following decimals as percent. Now this is a decimal question. You have to change it into percent. I told you, कोई भी नंबर हो आपके पास, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो? ए सेक्शन, फर्स्ट गर्ल जिसके पास माइक पड़ा हुआ है, क्या करते हो किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए? मैम मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई बाय 100. देन फिर कटिंग। फिर परसेंटेज का साइन भी लगाना है साथ के साथ, क्योंकि आप मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो? 100/100 से कर रहे हो नंबर को. ओके बेटा? जैसे ही आप उसके साथ 100 लिखोगे, साथ के साथ परसेंटेज का साइन भी आ जाएगा. कहां से आया परसेंटेज का साइन? 1/100 जो था, नीचे वाला जो 100 था डिनोमिनेटर में, उसको हमने साइन में कन्वर्ट कर दिया, तो आपका आंसर परसेंटेज में शुरू हो गया. इज इट फाइन? स्टार्टेड. क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट. एवरीबॉडी स्टार्ट. डू इट योरसेल्फ एंड चेक फ्रॉम द बोर्ड. किस किसने ठीक किया है? फर्स्ट पार्ट इज 0.537. ओके? आपका जो कंसेप्ट है, वन थिंग इज वेरी वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी. किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए वी डू इट एज 100/100. इट मींस इसका जब डेसिमल हटाओगे यहां से, रिमूव द डेसिमल, इट विल बी 1000. यू नो इट ऑलरेडी, छोटी क्लास में आपने सीखा हुआ है. ओके? इनटू 100%. इस कंसेप्ट को आपने मिस नहीं करना. ये आपको बार बार यू नो बेटा, यू कैन डू इट ओरली ऑल्सो, बट मैं बार बार आपको ये स्टेप रिपीट कर रही हूँ बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स की. कई बार वो परसेंटेज का साइन लगाना भूल जाते हैं एंड समटाइम वो ये वाला 100 लगाना भूल जाते हैं. प्लीज टेक केयर. ये स्टेप करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी गलती ना हो. ओके? नाउ यू कैन डू कटिंग लेटर. उसके बाद कटिंग करो. You know, नीचे डिनोमिनेटर में 10 है. We can write the decimal. We can write it like this: 53.7%. जो नीचे डिनोमिनेटर में 10 था, we have converted it into decimal number. I hope this step is very very clear to everybody. आपको याद है कि नीचे जब 0 होते हैं तो हम ऊपर डेसिमल लगाते हैं उसका. Do you know it? Raise your hand. पता है सबको बेटा? Yes, very good. इसको फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना आपने.
बिकॉज दे आर सेइंग कि आपको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज को सॉरी जो भी आपके पास फ्रैक्शन आया उसको लोएस्ट फॉर्म में करके उसको नॉर्मल नंबर बनाओ। ठीक है, अगर नीचे 0 है तो उसका डेसिमल लगाओ, 0 नहीं है तो फिर उसको कटिंग करके नॉर्मल नंबर में लेके आओ। I hope it is clear to everybody. Remaining questions B, C and D you have to do yourself. Okay? कोई भी मुश्किल नहीं है। अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका तो 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम में। ओके बेटा, और साथ में एमसीक्यू में भी आ सकता है, ये हो सकता है, या फिर सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स का भी आ सकता है। इसके रिमेनिंग पार्ट आपको घर पे करने हैं। कोई डाउट होगा यू कैन आस्क मी टुमारो। ठीक है, सेम प्रोसेस सब में चलेगा। फोर्थ क्वेश्चन, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंट्स एज डेसिमल। परसेंट इज ऑलरेडी गिवन टू यू। किसी को पता है कैसे करना है ये क्वेश्चन? हाथ खड़ा करो जिसे इसको पता है कि हाँ ये ऑलरेडी डेसिमल में है, सॉरी परसेंटेज में है, तो हम इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हाथ खड़ा करो किस किस को पता है। यस, जी सेक्शन से आई कैन सी वन हैंड। यस, बी सेक्शन से भी। यस, फर्स्ट गर्ल, यस जल्दी से बता दो बेटा। बी सेक्शन, लाउडली बोलो बेटा। थोड़ा लाउडली बोलो बेटे। तो माइक क्यों नहीं काम कर रहा बेटा? यू आर नॉट स्पीकिंग प्रॉपरली। एनीबडी एल्स? मल्टीप्लाई विद 1/100। मल्टीप्लाई बाय 1/100 बिकॉज हम इसको परसेंटेज को नंबर में ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके, परसेंटेज साइन हैज कन्वर्टेड इनटू 1/100। नाउ दे आर सेइंग आपको इसको एज अ डेसिमल कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल की फॉर्म में इसको लेके आना पड़ेगा। 47/100 है आपके पास, तो क्या आएगा 0.47। दिस इज डेसिमल नंबर। बेटा यू नो इट एवरीबडी कि कितनी जीरोस होती हैं और हम कैसे काउंट करके डेसिमल लगाते हैं। डू यू नो इट? हाथ खड़ा करो जिनको ये पता है कि हाँ नीचे कितनी जीरोस होती है, उसके अकॉर्डिंगली हम काउंट करके डेसिमल लगाते हैं ऊपर। 6 में था ये आपका डेसिमल का चैप्टर। ओके गुड, चलो नाइस बेटा। ये बीसीडी ऑल द पार्ट्स आर सेम, दिस इज फॉर प्रैक्टिस, दैट्स व्हाई दीज ऑल पार्ट्स आर गिवन टू यू। ओके, प्लीज टेक केयर, जो चीज आपसे पूछी गई है उसी फॉर्म में आपने आंसर को दिखाना है करके। ओके बेटा, लेट अस स्टार्ट मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 आपके साथ है। ओके, मॉड्यूल 2 के लिए बेटे आपके पास अभी कंपेयरिंग क्वांटिटीज में परसेंटेज आपको समझ आ गया, हाउ टू चेंज परसेंटेज इनटू डेसिमल, हाउ टू चेंज परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, यू हैव अंडरस्टूड दैट। अभी कंपेयरिंग क्वांटिटीज में थोड़ी सी और चीज आपकी समझने वाली है। व्हाट इज दैट? आई एम गोइंग टू राइट दैट फर्स्ट। आपने ऑलरेडी किया हुआ है ना ये क्लास में चैप्टर। ओके, तो इसमें आपके पास एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, आपने ऑलरेडी पढ़ा था कि एक कॉस्ट प्राइस होती है हमारे पास। ओके, और एक सेलिंग प्राइस होती है। कॉस्ट प्राइस मतलब जिस कॉस्ट पे जितनी मनी में आप चीज को खरीदते हो, और सेलिंग प्राइस इज कितनी मनी में आप उसको बेचते हो, हाउ मच मनी यू गेट आफ्टर सेलिंग इट। ओके, तो अगर आपको ये फॉर्मूला तो पता ही है पहले से। इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी देन क्या होता है? व्हाट हैपेंस इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी? प्रॉफिट। प्रॉफिट, बिकॉज यू आपने कम में खरीदी, 100 रुपीज में खरीदी और 150 में उसको बेच दी, यू आर गेटिंग अ प्रॉफिट, सो यू विल गेट अ प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। ओके, और सेकेंड फॉर्मूला आपका यूज होता है प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि आपने अभी परसेंटेज सीख लिया है तो दे विल आस्क यू प्रॉफिट परसेंट ऑल्सो। सिंपल प्रॉफिट तो आपने 6 में भी किया हुआ है।
7th में you are learning about percentage. So profit percent formula is profit by CP into 100. Okay, so this formula you are using it prominently. काफी बार use कर रहे हो ये वाला formula इस chapter में. Okay, and second thing is if CP is greater than SP, ज्यादा में आपने खरीदी लेकिन कम में बेची बाय चांस कुछ डिफेक्ट था या ओल्ड थी या व्हाटएवर, ठीक है, then it will be loss and loss will be equal to bigger number minus smaller number, that is CP minus SP. आपने ऑलरेडी ये फॉर्मूला किया होगा. ओके, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला परसेंटेज तो निकालना ही है. दैट विल आल्सो बी लॉस बाय सीपी इनटू 100. प्लीज रिमेंबर दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप बेटा कि आपको सीपी के ऊपर ही आपकी परसेंटेज निकलती है. ऑलवेज वी टेक सीपी इन द डिनोमिनेटर for finding profit percent or loss percent. Please remember it. Okay, ये फॉर्मूला आपका यूज हो रहा है यहाँ पे. Let us start assertion reason. First is yes. Assertion reason. Questions. Same formula is applied here. Okay, keep the formula in front of you. Apply it whenever you do the question. Okay, first assertion is Sapna purchased a cycle for rupees 1000. Let us do first question, beta. Beta, I told you assertion reason also you have to do little calculation. Oral nahi karna usko. Write down everybody in the notebook. Write down. Assertion is Sapna purchased a cycle for rupees 1000. तो 1000 क्या होना चाहिए, सीपी या एसपी? सीपी. सीपी. सबको पता है? रेज योर हैंड. हाथ खड़े करो जिसको पता है. यस, वेरी गुड. सीपी आपके पास 1000 रुपीज है. ओके, एंड sold it for rupees 1200. SP is given to you rupees 1200. Okay, and gain percent they are saying gain percent or profit percent is same. You know it. सेम ही नेम है दोनों का. गेन मीन्स प्रॉफिट. ओके बेटा, गेन इज प्रॉफिट ओनली. ओके, they are asking that gain is 40%. अगर आपको सीपी और एसपी दिया हुआ है गेन परसेंट, इज इट ट्रू? क्या ये 40% आ रहा है? लेट अस फाइंड इट. पूरा ये क्वेश्चन करना है आपने. ओके, 2-3 स्टेप है इसके. 20%. False. Okay, who are saying false? Raise your hand. Okay, क्या आ रहा है आंसर? क्या आ रहा है? 20%. Yes, you have found it. Good. So this is false. Assertion is false. Okay, and reason is given to you. Percentage gain means to express the profit or the gain in the form of percentages. True. True. Raise your hand. Who say true? Yes. Very good. Sentence को 2 times पढ़ो. Yes, this is true. तो आपकी ऑप्शन आएगी डी. किसी को डाउट है? प्लीज साइड बाय साइड अपने आंसर्स पूछते जाओ अपने डाउट्स. ओके बेटा, क्योंकि आंसर लिख लिया तो इसका मतलब फिर आपको बाद में इसको रटा नहीं लगाना पड़ेगी एग्जाम में. अभी आप सोचो कि अभी इसका डी आंसर था, इसका ए आंसर था. एग्जाम में आपकी स्टेटमेंट चेंज भी हो सकती है थोड़ी सी. So do it by understanding. Second question, assertion. Kanti purchased a sewing machine for rupees 2000. Again आपको CP दिया हुआ है. CP is equal to rupees 2000. Beta, I'm writing on the board. You also write it in the rough.
अपने रजिस्टर में लिख लिख के करो इसको। मैथ्स की क्लास में आपका पेन रुकना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। सो मेनी थिंग्स आर टू बी रिटन। जो गिवन है उसको भी लिखो, जो फाइंड आउट करना है उसको भी लिखो, कैलकुलेशन भी लिखनी पड़ेगी, पेन तो रुकने का कोई चांस ही नहीं है। ओके, CP is given to you 2000. She sold it at a loss of 40%. ठीक है। जी बिल्कुल। सैफ अली खान इस बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पर पेंट हाउस उनका है, 7 माले पे ऐसा बात सामने आ रही है। टॉप फ्लोर पे उनका जो घर है वो आप कह सकते हैं वहां पर सैफ अली खान का इस बिल्डिंग में है। स्टैंड अलोन ये बिल्डिंग है, इसकी कंपाउंड वॉल इसको हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस कर्मी जो है यहाँ पर मौजूद है, वो असेस कर रहे हैं यही चीज कि वो शख्स जो है वो कहाँ से आया होगा। उसके साथ साथ अगर आप देख पाएंगे तो राइट हैंड साइड बंद हो गया। है यही चीज कि वो शख्स जो है वो कहाँ से आया होगा। उसके साथ साथ अगर आप देख पाएंगे तो राइट हैंड पहले भी होता था नहीं ऐसे। ये सॉरी बेटा, जस्ट सी हियर। किस किसने निकाल लिया ये क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन? यस, आई कैन सी मेनी हैंड्स। Kanti purchased a sewing machine for 2000. She sold it for this. Lost percent is given to you. Yes, beta, assertion is true. Raise your hand. निकाल लिया सब बच्चों ने? Yes, this is true. Okay, loss percent is given to you. They are saying ki what is SP. SP is coming out to be 1200. This is true. Reason is given to you. The amount that the buyer pays to buy the product is called the selling price. Reason is true. I'm reading once more. The amount that the buyer pays. Amount मतलब money. जितनी money जो है जो शॉपकीपर है पे करता है to buy the product is called the selling price. This is true. True. दो बार पढ़ो सेंटेंस को। The amount that the buyer pays. Buyer कौन है? Customer. Okay. पे करता है to buy the product is called the selling price. Yes, true. ठीक है। बेटे जैसे मैं शॉप पे गई कुछ खरीदने के लिए, ठीक है, जो शॉपकीपर है अगर मेरे को कुछ चीज दे रहा है किसी किसी अमाउंट में, ठीक है, तो उसकी क्या हुई है? सेलिंग प्राइस हुई ना। शॉपकीपर कौन है? शॉपकीपर भी तो बायर है ना। शॉपकीपर ने भी तो कहीं से चीज खरीदी फिर मेरे को बेची। ओके, जो मैंने मनी दी शॉपकीपर को तो वो क्या हुआ? उसका सेलिंग प्राइस हुआ ना। ओके, सो दिस विल ऑल्सो बी ट्रू। इसको रिवाइज करना एक बार दोबारा। So option will be A because both are true.
Okay, let us start with MCQ. First question. Reward sells a TV for rupees 8400. Formulas अपने सामने रखना बेटा. You have to revise it. Reward purchased a TV for rupees 8400. Sorry, sells a TV for rupees 8400. तो ये क्या हो जाएगा? 8400 क्या होगा आपका? What should I write here? Selling price or cost price? Selling price. It should be selling price is equal to 8400 rupees 8400. Okay. Reward sells a TV for rupees 8400, making a profit of 20%. Profit percent is given to you is equal to 20%. And what was the CP of the TV? CP we have to find out. Okay, formula अपने सामने रखो, formula mind में रखो अपने. This is a subjective question, 3 marks question है ये. SP is given to you. ये थोड़ा सा बड़ा difficult question है, इसको ध्यान से समझ लो. How to do it? बेटे whenever we are given profit percent, इसका मतलब क्या है? Profit percent जो 20% दिया हुआ है, इसका मतलब है कि if CP is rupees 100, then profit is equal to rupees 20. Please understand the meaning of profit percent. जो आपको profit percent दिया हुआ है, उसका मीनिंग है कि अगर आपकी कॉस्ट प्राइस 100 होती तो आपको प्रॉफिट मिलना था उसके ऊपर 20 रुपीज. ओके, तो वहां से आपके पास एसपी क्या होना था? देयरफॉर यहां से एसपी क्या होना था आपके पास? क्या रिलेशन होता है? प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? एसपी माइनस सीपी ना. तो प्रॉफिट विल बी इक्वल टू एसपी विल बी इक्वल टू व्हाट? प्रॉफिट प्लस सीपी. 100 प्लस 20 is equal to 120. तो आपके पास एसपी आना था 120. प्लीज रिमेंबर दिस स्टेप. सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड कर लो, बाकी क्वेश्चन तो हम बाद में करेंगे. और प्लीज लिखने से पहले इसको समझ लो पहले. लिखने पे आप ज्यादा फोकस कर रहे हो. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट क्वेश्चन है ये बिल्कुल. प्लीज अंडरस्टैंड कि जब भी आपको प्रॉफिट परसेंट दिया होता है, ओके, तो प्रॉफिट परसेंट जो आपको 20% है, इसका मतलब है कि अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस 100 है तो उसके ऊपर आपको 20 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेंगे. ओके, तो प्रॉफिट आपके पास कितना होगा? 20 रुपीज का आपको प्रॉफिट हो गया. इसका मतलब कि सेलिंग प्राइस आपकी क्या हुई कि 100 रुपीज में हमने चीज खरीदी थी, 20 रुपीज हमें एक्स्ट्रा मिल गए, तो एसपी हमारी होगी 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120. ये स्टेप समझ आई है? ये जो मैंने बताई है इसकी बैकग्राउंड, हाथ खड़ा करो जिससे इसको समझ आया है ये चीज. अभी हमने क्वेश्चन नहीं शुरू किया. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इसका मीनिंग क्या होता है. वेरी गुड, हैंड्स डाउन. ओके, अब ये जो हमने बैकग्राउंड लिखी है, सिर्फ हमने इस चीज को देख के लिखा है. इस चीज को, इसको देखते हुए हमने ये सारी स्टोरी बना ली कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 होता तो प्रॉफिट 20 रुपीज होता और हमारी एसपी क्या होनी थी? 120 रुपीज. ओके, तो अभी हमने ये क्या करना है? यूनिटरी मेथड लगाना है. ठीक है, नाउ यू हैव टू अप्लाई यूनिटरी मेथड. यूनिटरी मेथड सबको पता है, आपने 6th में सीखा हुआ है. तो यूनिटरी मेथड में क्या होता है कि इफ, समझ लो पहले, बाद में नोट करना है इसको. इफ एसपी इज रुपीज 120, देन सीपी इज इक्वल टू रुपीज 100. अभी अभी हमने ये सारा लिखा है यहाँ पे कि अगर एसपी 120 है तो सीपी 100 होगा. एंड इफ एसपी इज ₹1, देन सीपी विल बी इक्वल टू 100 बाय 120. यूनिटरी मेथड में यही सीखते हो आप. ओके, एंड इफ
SP is rupees 8400 जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था. Then CP will be equal to 100 upon 120 into 8400. ये आपका यूनिटरी मेथड लगा और यहां से आपकी CP आएगी जो उन्होंने पूछी थी. ओके ये आपका ऐसा क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है. थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बिकॉज CP निकालने के लिए आपको थोड़ा सा ये वाला प्रोसेस करना पड़ेगा. ओके प्लीज कैलकुलेट एंड टेल मी क्या आंसर आएगा इसका. लोएस्ट फॉर्म में करो, कटिंग करो इसकी. और किसी को कोई स्टेप नहीं समझ आया प्लीज स्टैंड एंड आस्क मी. दिस इज डिफरेंट क्वेश्चन. बाकी क्वेश्चन इजी लगेंगे आपको कि हाँ दिया हुआ SP निकालना है सिंपल, बट CP निकालने के लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी. Okay, I'm putting star over here. It means this is different. You have to revise it 2 times, 3 times. And कोई doubt है, you can ask me tomorrow also and now also. ठीक है, ये जो स्टोरी हमने बनाई है, this is all imagination. हमें प्रोसेस पता है कि प्रॉफिट परसेंट का मतलब है 100 के ऊपर हमें प्रॉफिट हुआ है. लॉस हुए तो वो भी 100 के ऊपर हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तो वो भी 100 के ऊपर हुआ है. ये बैकग्राउंड हमारी जो है वो ये बता रही है. ओके फिर हमने इसको यूज किया. प्लीज टेल मी क्या आ रहा है आंसर इसका बेटा. 100 by 120 into 8400. Even numbers हैं up and down. You can do the cutting. Very good. हाथ खड़ा करो किस किसने निकाल लिया है. 7,000. हाँ जी ए सेक्शन बच्चे. यस यू वांट टू टेल मी. 7,000. ओके आपकी आवाज क्लियर नहीं है. चलो सबको करने दो. You had to find CP in this question. इवन नंबर्स है अप एंड डाउन बेटा. आप 4 के टेबल से भी इसको कर सकते हो इफ यू वांट. ठीक है 4 2s are 8 and 4 1s are 4 and नीचे it will be 4 3s are 12. Then you can cut it. 3 को 21 से काट सकते हो. 7 3s are 21. Okay and आपके पास यहाँ पे 0 भी एक बचा हुआ है. You can write it like this. It will be 70. तो आपके पास आएगा 7000. This is the CP final answer. Who have found 7000? किस किस का निकला है? Good. Okay, now hands down. Now raise your hand who have understood this question. How to do? Very good. Please इसको रिवाइज करना बेटा. स्पेशली उस क्वेश्चन में जिसमें हमें CP निकालनी होती है हमें यूनिटरी मेथड से ही करना पड़ेगा इसको. ओके लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. A retailer buys a watch. Ma'am, For time rupees is over. 400. Time is over. Let us write everything. जो given है उसको हम लिखेंगे. A retailer buys a watch for rupees 480. Ma'am, time is over. You know he buys it. Buy means it will be the CP 480 and he sells the watch for rupees 600. CP then SP is given to you rupees 600. आपको बहुत clearly पता चल रहा है. SP is more than CP. Okay, quickly इसको लिख लो. SP is greater than CP. आपको दिख रहा है यहाँ पे. And calculate his profit or loss percent. आपको खुद सोचना है कि वो प्रॉफिट है या फिर लॉस है और जो भी है उसका परसेंटेज भी निकालनी है. ओके
Write down the sign. SP is greater than CP. It means you know we have a profit. SP minus CP. Write down the formula ताकि आपकी mistake ना हो. 600 minus 480. Calculate the profit and then profit percent. Okay. You know it कि हमें profit ही निकालना है क्योंकि everything is given to you. Very good. What is profit, beta? 25%. B section. Gurnoor Singh. माइनस करके बताओ मेरे को कितना आ रहा है एंड इसका प्रॉफिट परसेंट भी बताओ. गुरु बेटा किया है आपने? करो करो. वेरी गुड. डू इट डू इट. सब करते रहो. मेरे को बताओ एंड बाकी बच्चे भी चल अपना पेन चलाते रहो. आई कैन कॉल एनीबडी एल्स आल्सो. After finding the profit, find the Time profit is percent over. also. फॉर्मूला आपको बताया हुआ है ऑलरेडी. सीधा फॉर्मूला. 25%. यस को नोट कर लिया आपने बेटा? Yes. हाँ जी बताओ बेटा. 600 minus 480. 120. ओके आपकी आवाज क्लियर नहीं है शायद. Time is over. Is it coming out to be 120? Yes. ओके. प्रॉफिट परसेंट निकालो. प्रॉफिट परसेंट आपको फॉर्मूला पता है इसका. प्रॉफिट परसेंट का प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100. गुडोर हाथ खड़ा करो. हैव यू फाउंड इट? आपकी आवाज तो नहीं आ रही है. हाथ खड़ा करो बच्चे. Yes. ओके वेरी गुड बेटा. योर माइक इज नॉट वर्किंग. हाथ खड़ा करो किस किसने प्रॉफिट परसेंट निकाल लिया है. Excuse me, ma'am. Time is up. चेक फ्रॉम द बोर्ड. अपनी कैलकुलेशन चेक करो. इट इज 480 इंटू 100%. बहुत सिंपल कैलकुलेशन है. इवन Ma'am, 5 नंबर्स है minutes आपके ऊपर हो सामने. गए हैं. ओके. जिसने कर लिया है आंसर मैच करो. इज इट कमिंग आउट टू बी 25%? किस किसने निकाली है प्रॉफिट परसेंट? रेज योर हैंड हु हैव फाउंड 25%. वेरी गुड. दिस इज करेक्ट आंसर. ओके. कटिंग यू नो हाउ टू डू. मैम 5 minutes ऊपर हो गए हैं. 6 minutes हो गए मैम ऊपर. मैम साउंड इज नॉट कमिंग. Time is over. Yes. Everybody has found? मैम टाइम हो गया ओवर. Time is over? मैम 6 minutes अप हो गए हैं. आवाज नहीं आ रही आपको शायद. Can anybody else speak from other section? बेटे आपका टाइम अप हो गया है. Your time is up? Okay, okay बेटा. Okay. Okay, see you tomorrow बेटा. Please revise कर लेना इसको.